Hello friends, welcome to Go to Deep. Today in this video we will continue our discussion on class 6 and the related issues. Previously we uploaded the first part of the video. Those who have not watched the first part, please watch the first part so that to get a basic idea that we'll be discussing today. So in the previous video we have talked of the Assam Accord, which was a memorandum of settlement signed by the representative of government of India and the leaders of Assam movement. तो हम लोगों ने तब देखा कि असम अकॉर्ड है क्या, कब साइन किया गया, कौन कौन से पार्टीज थे, और असम अकॉर्ड में जो दिया गया यार्ड स्टिक्स थे सिटीजनशिप को लेके, वो भी हमने देखा कि 1951 के पहले जो थे उनके साथ कैसा ट्रीट किया जाएगा, उनको क्या स्टेटस मिलेगा, जो 1961 के बाद आए उनको क्या मिलेगा, जो 1971 के बाद आए उनको क्या मिलेगा. और हमने देखा कि कौन सा जो साल है उसको हम बेस ईयर मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डिटेक्शन एंड डिलीशन ऑफ फॉरेनर्स. हमने बहुत सारे क्लॉजेस के बारे में बात किया मेनी क्लॉजेस स्टार्टिंग फ्रॉम क्लॉज नंबर 5 टू क्लॉज नंबर 12, 13. तो हमने देखा कि डिफरेंट क्लॉजेस के अंदर क्या क्या खासियत था, या फिर क्या क्या डिमांड्स, या फिर कौन कौन से गवर्नमेंट की तरफ से प्रोमिसेस थे. हमने देखा कि किन किन सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने इस जो अकॉर्ड है उसको साइन करने के लिए तैयार हो गया. हमने देखा कि किन किन कारण को गवर्नमेंट ने दर्शाया लोगों के सामने कि हाँ इन कानूनों के मद्देनजर हमने इस अकॉर्ड को साइन किया. हमने ये भी देखा कि रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलसी के लिए क्या क्या एग्रीमेंट हुए गवर्नमेंट और जो एजुकेशन के लीडर्स थे उनके बीच. So in this video today we will start discussing with the major flow of events related to NRC, related to citizenship, and obviously the resultant clause 6. So the timeline post independence shows a history of population exchange, a state trying to regulate flow of people, movement of ethnic nationalism that were defined by a fear of outsiders and attempts to define citizenship in a land of fluid frontiers. So these flow of events are put here only for your reference and revision. ये जरूरी नहीं कि हम सभी जो इवेंट्स हुए उनको मतलब मेमोराइज कर ले, लेकिन जैसे कि ये टॉपिक बहुत ही खास है, हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से हमने स्टार्टिंग फ्रॉम 1948 टिल टुडे हमने ये फ्लो ऑफ इवेंट्स को यहाँ पे पुट किया. और आप देख सकते हैं इसका सोर्स हमने लिखा हुआ है. इसका सोर्स आप ऑनलाइन जर्नल द एशियन एज से हमने ये लिया है. तो 1948 के जुलाई तक there were no restrictions on movement of persons from India to Pakistan and vice versa. लेकिन जुलाई के 19 तारीख 1948 को एक ऑर्डिनेंस आया which restricted free movement from one part, that is from India to Pakistan, और the opposite. हम सिर्फ यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं. 1951 में फर्स्ट एवर एनआरसी हुआ असम में. 1955 में इंडियन गवर्नमेंट ने लाया द सिटीजनशिप एक्ट. In 1960, a bill was passed in the Legislative Assembly of Assam to make Assam, the only official language of the state. यहाँ पे आप इसको भी मतलब नोटिस करें कि 1964 में the center issued foreigners tribunal order, क्योंकि इसका विजिट बाद में आएगा. तो 1964-65 में due to some disturbances in East Pakistan, एक बहुत बड़ा influx of refugees असम में आ गए थे. 1971 में क्या हुआ, बांग्लादेश लिबर्टी मूवमेंट के कारण बहुत तादाद में लोग असम में आके बस गए थे. So a fresh influx due to riot and war in East Pakistan came and settled in Assam.
1971 में the Assam movement started. As we know, in 1980, ASU submitted the first memorandum demanding updation of NRC in the state to the center. तो 1980 में All Assam Students Union ने the first memorandum demanding updation of NRC submitted to the center on January 1980. तो आगे हम देख सकते हैं कि 1983 में इसको असम मूवमेंट के साथ जोड़कर अगर आप देखें तो इसको आप बहुत मतलब एक बहुत ही काला साल बोल सकते हैं, क्योंकि इट caused or claimed rather the lives of 3,000 people due to a massacre in 1983 at Nelly in central Assam. और साथ में क्या हुआ, illegal migrants determination by tribunal act जो है वो पास किया गया था. 1985 में क्या हुआ, 1985 में the Assam Accord was signed by the center, the state, ASU and All Assam Ganasangram Parishad in presence of Prime Minister Rajiv Gandhi on the midnight of August 14. तो असम अकॉर्ड तो हमने इस बारे में बहुत कुछ बातें किया, फिर भी it stated among other clauses that the foreigners who came to Assam on or after March 25, 1971 shall be expelled. तो फिर जो इवेंट हुआ वो 1990 में हुआ. आसू ने मॉडलिटीज एनआरसी के साथ जुड़ा हुआ मॉडलिटीज जो है वो सेंटर को सबमिट किया. 1997 में जो है इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, it decided to put the D that is doubtful against the names of the voters who claim to Indian citizenship is doubtful. जिन डाउटफुल सिटीजनशिप वाले लोग हैं उनके नाम के अगेंस्ट जो है इलेक्शन कमीशन ने डी अर्थात डाउटफुल जो है उसको जोड़ दिया. तो 1999 में सेंटर took the first formal decision to update the NRC as per the Assam Accord's cut-off date to reject the illegal foreigners during a tripartite meeting between center, state government and ASU on November 17, 1999. 2003 में क्या हुआ? The Citizenship Amendment Act was passed, introduced, and then among other changes to the 1955 law, it said anyone born in India between 1950 to 1987 is an Indian citizen, and anyone born between 1987 to 2003 is a citizen provided one of the parents are Indian. और भी बताया, क्या बताया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जिसका बात इंडिया में हुआ since 2004 is a citizen provided one of the parents is Indian and other is not an illegal immigrant at the time. 2005 में क्या हुआ? 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसने क्या आइडेंटिटी एक्ट जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के it strike down. So a tripartite meeting among the central state government and ASU held, and that meeting decided to update the 1951 NRC. लेकिन कोई भी मेजर डेवलपमेंट नहीं हुआ. 2006 में the central government issued the Foreigners Tribunal Amendment Order exempting Assam from 1964 ट्रिब्यूनल ऑर्डर. तो मैंने पहले ही बताया कि इसका जिक्र आएगा. जो 1964 में जो ऑर्डर दिया था फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे असम को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था 2006 में, और असम के लिए एक स्पेसिफिक रूल या फिर आप बोल सकते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर, तब फ्रेश ऑर्डर निकाला गया. तो फॉलोइंग द प्रीवियस इवेंट्स 2009 में क्या हुआ, असम पब्लिक वर्क्स जो कि एनजीओ है असम का, it filed a case in Supreme Court praying for deletion of foreigners in the electoral rolls and also about updating the NRC. 2010 में क्या गया, पायलट प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया छायागांव में बरपेटा में जो अपडेट NRC प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ थी, लेकिन वायलेंस भी हुआ, मतलब मारे भी गए. 2013 में जो है सुप्रीम कोर्ट टेक्स अप द पिटीशन दैट वाज फाइल्ड बाय APW and directs center and state to begin the process for updating NRC.
और क्या हुआ जो आप यहाँ पे गौर कीजिए, वो साल 2013 ही था जब एनआरसी का मतलब स्टेट कोऑर्डिनेटर्स का ऑफिस का सेटअप किया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया सेंटर को, स्टेट को, कि आप लोग एनआरसी अपडेशन का जो काम है वो स्टार्ट कर दीजिए। 2015 में तो अकॉर्डिंगली वो स्टार्ट हुआ फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, or you can say that under the aegis of the Home Ministry, obviously adhering to the verdict of Supreme Court. 2016 में the भारतीय जनता पार्टी introduced the Citizenship Amendment Bill. It proposed to facilitate citizenship for non-Muslim minorities from Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, etc. तो ये आप सब जानते ही हैं। ये केप का जो है वो इंट्रोडक्शन 2016 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हुआ था। 2017 में ऑन December 31 midnight, draft NRC was published with a name of 1.9 crore hospital, 3.29 crore applicants. In 2018, another draft NRC was published, and in 2019, additional draft exclusion list publish किया गया। 2019 का 31 अगस्त को फाइनल एनआरसी जो है वो रिलीज किया गया था। अभी 2019 का यूनियन इलेक्शन के पहले सरकार ने ये वादा किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि we will get the car passed from the parliament, और हम क्या करेंगे for safeguarding the interest of indigenous people, we will bring clause 6, will make effective decisions regarding clause 6, और इसके लिए थोड़ा हलचल भी हुआ था। फिर जब दिसंबर 11, 2019 को का पास हुआ तो तब एक बहुत ही मतलब जबरदस्त हंगामा हुआ, जबरदस्त एजिटेशन हुआ, जबरदस्त पीपल की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ असम में। इसको मद्देनजर रखते हुए 12 दिसंबर को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये ट्वीट करके ये मतलब इनको हमारे असमीज पीपल को ये एश्योर किया कि हम कमिटेड हैं आपको सेफगार्ड करने के लिए, पॉलिटिकली, लिंग्विस्टिकली, कल्चरली, और आपका लैंड राइट्स भी सुरक्षित रहेगा। तो अपना दिया हुआ वादा निभाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, होम मिनिस्ट्री ने क्या किया, जनवरी 4, 2019 को होम मिनिस्ट्री ने एक कमिटी बनाया, हाई लेवल कमिटी बनाया टू इम्प्लीमेंट द क्लॉज 6 फॉर असमीज पीपल। उस कमिटी में 9 मेंबर्स का नाम जो है था, एंड इट वाज नोटिफाइड ऑन जनवरी 7, 2019, बट इन ए वीक टाइम 9 मेंबर्स में से 6 मेंबर जो है वो उन्होंने रिफ्यूज कर लिया था कि नहीं, हम इस कमिटी का पार्ट नहीं रहेंगे, और उस कमिटी का हेड बनाया गया था एमपी बेज बरुआ। अभी जुलाई 17 को फिर एक कमिटी बनाया गया, हाई लेवल कमिटी। इसमें 13 मेंबर थे जो कि हेड कर रहे थे रिटायर्ड जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट बिप्लब कुमार शर्मा। So according to newspaper reports, the mandate of the committee is to examine the effectiveness of actions taken since 1985. 1985 से आज तक जो एक्शंस लिया गया उसका इफेक्टिवनेस जांच करना है। 1 नंबर, टू इम्प्लीमेंट क्लॉज 6 एंड होल्ड डिस्कशन विद द ऑफ स्टेकहोल्डर्स के साथ बातें करके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लॉज 6 के मतलब जो रोड मैप है वो तैयार करना भी था। इंक्लूडिंग स्टेकहोल्डर्स कौन थे, इंक्लूडिंग सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, एमिनेंट पर्सन्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स to determine the appropriate level of reservation of seats where in the state assembly and in the local bodies for the Assamese people. तो Assamese people जो है उसको डिफाइन करना भी बहुत ही बड़ा चुनौती है, जो जिसमें मतलब बहुत ही हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो जो भी हो, तो ये कमिटी जो है वो अपना कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दिया हमारे सीएम को 25 फरवरी 2022। हालांकि वो लोग दिल्ली गए थे, उनका ये मन में मतलब विश था कि हम जाके इंडियन जो होम मिनिस्टर को सबमिट करें, लेकिन इंडियन होम मिनिस्टर ने उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप स्टेट गवर्नमेंट में जाए और आपके स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मेरे पास ये रिकमेंडेशन है, फिर आपका रिपोर्ट आए।
तो उन्होंने अकॉर्डिंगली 25 फरवरी 2020 को हमारे सीएम को ये रिपोर्ट सबमिट कर दिया था। तो हाल ही में 11 अगस्त को अचानक से ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक होता है। जो 13 जन का ग्रुप था, हाई लेवल कमेटी था, उनमें से 3 मेंबर ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के भी थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 11 अगस्त 2020 को सामने आए और आके मतलब ये रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि द पब्लिक हैज अ राइट टू नो दैट व्हाट द रिपोर्ट कंटेन्स। और हमने क्या किया, तो उस रिपोर्ट के मुताबिक जो एसएमएस का डेफिनेशन है वो बहुत ही मतलब जरूरी है आप लोगों के लिए जानना, किसी के भी लिए जानना, क्योंकि आफ्टर ऑल द रिपोर्ट टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन अबाउट द एसएमएस पीपल। तो कौन एसएमएस है ये भी आप जान लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 कैटेगरीज जो है उन्होंने ये दिया। नंबर 1, द Assamese communities residing in the territory of Assam on or before January 1st of 1951. सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं any indigenous tribal community residing in the territory of Assam on or before January 1st of 1951. Any other indigenous community residing in the territory of Assam on or before January 1st, 1951. All other citizens of India residing in the territory of Assam on or before January 1, 1951. And obviously the descendants of the above categories mentioned. जैसे कि ये कमेटी इसीलिए बनाया गया था कि आप जो है ऐसा प्रपोजल मतलब आप लोगों से बात कीजिए, बात करके आप ऐसा प्रपोजल्स या फिर ऐसा रिकमेंडेशंस लेके आइए जो कि हम लागू कर सकते हैं और जो सेफगार्ड करेगा जो इंडिजिनस पीपल है उनका इंटरेस्ट। तो मेजर प्रपोजल्स रिपोर्ट में जो था, जो कि हमने देखा जब आसू ने ये पब्लिक किया, तभी कुछ मेजर पॉइंट्स ये है कि 80 to 100% reservation of seats in parliament and state assembly and also in local bodies for the Assamese people. Now who are the Assamese people? We have talked about it in the previous slide. तो वो जो 5 कैटेगरीज के पीपल हैं उनके लिए हम क्या करेंगे या फिर क्या करने वाले हैं, 80 to 100% रिजर्वेशन करेंगे पार्लियामेंट में या फिर स्टेट असेंबली में या फिर लोकल बॉडीज में। हाँ, तो तीनों में मतलब उनका जो है मतलब मेजोरिटी बना रहे, इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट में वो लोग कहते हैं या फिर उन लोगों ने ये रिकमेंड किया कि आप एजुकेट प्रोविजन बनाइए कि असम में एक अपर हाउस या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाए, जो जिसमें जो है जो ऑल द सीट्स विल बी कंस्टिट्यूटेड बाय द Assamese people. The Assamese people who come under the 5 categories as I mentioned earlier. कि जो अपर हाउस होगा उस अपर हाउस में सभी Assamese people रहेंगे। इनर लाइन परमिट की भी बात की गई कि हाँ इनर लाइन परमिट भी जैसे कि मेघालय में है या मिजोरम में है, आप वैसा इनर लाइन परमिट असम के लिए भी लागू कीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए। Reservation of 80 to 100% of Group C and Group D level posts in central government. किनके लिए? Assamese people के लिए, या फिर सेमी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल PSU, प्राइवेट सेक्टर, फॉलिंग एंड राइजिंग इन असम, जैसे कि आप ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पे ऑयल इंडिया लिमिटेड जो नुमलीगढ़ ऑयल रिफाइनरी है। तो ये सब जो है जो द प्राइवेट सेक्टर्स या फिर PSUs फॉलिंग अंडर और राइजिंग इन असम should be reserved at least 80 to 100% for the Assamese people. Those Assamese people which are identified under the 5 categories that I mentioned in the previous slide. और जो 5th recommendation वो ये था कि 80 to 100% of jobs under the state government and its undertakings and 70 to 100% of vacancies arising out in PPP model to be reserved for the Assamese people. और जो है लैंड राइट्स टू बी कन्फाइंड टू द Assamese people, putting restrictions on transferring the same by any means to other persons other than the Assamese people. या फिर यानी आप मतलब नॉन Assamese जो पीपल हैं उनको लैंड ट्रांसफर या फिर सेल करने में भी पाबंदी लगाई। तो ये सब था जो मेजर प्रपोजल था वो, और भी बहुत सारे प्रपोजल्स थे लेकिन यही वो प्रपोजल्स है जिनका चर्चा किया जा रहा है। और भी प्रपोजल्स है, आप देख सकते हैं कि
जो बराक बुलेटिन है उसने भी एक रिपोर्ट पब्लिश किया कि इसका भी प्रपोजल है कि हम जो सिलचर का जो मेडिकल कॉलेज है या फिर रेलवे स्टेशन है उनका भी नाम चेंज किया जाए और उनका भी नाम they should be named after the indigenous people or the Kachari people or the tribal people who are residing in the area following. So now what's the way forward? Yes, because this is a very sensitive issue and it is related to me, you and all other. So I should be very impartial here and I will just point out the things and discourse will be made here by me at least. Okay, so the report that the high level committee has prepared is bound to be challenged in court. Now the issue is whether it will stand the test of judicial scrutiny before it is bound to be challenged in courts, and will it stand the test of constitutional validity. ये है पहला issue. दूसरा issue है कि the definition is Assamese is connected to the NRC process. जैसे कि आपने देखा कि NRC में जो मतलब डिटरमाइनिंग ईयर था जिसके बेसिस पे NRC का लिस्ट जो है वो पब्लिश किए गए थे, वो ईयर और Assamese डेफिनेशन के लिए जो ईयर है वो एक नहीं है. लेकिन ये जो मतलब कमिटी बनाया गया उसने क्या किया, NRC प्रोसेस में जो साल था, जो वित्तीय वर्ष था, बेसिस ईयर, उसको जो है उन्होंने चेंज किया इस मैटर में, क्लॉज 6 के मैटर में. तीसरा बात है कि द डेफिनेशन ऑफ Assamese, Bengali or any other sects or any other community of India, whether define the Indianness, because after all it will question the integrity. And one very interesting issue is whether the same Indian government scraping the Article 370 from a state and in a year or so it is giving some extra privileges to a particular community of people who are in majority in number. So this will prove somewhat dual standard of the government. I am not making any kind of judgments, but this is just an opinion that if the government is trying to make India a unified land, integrated land, and for this purpose only, it has scrapped the Article 370 that used to facilitate the state of Jammu and Kashmir and their people with some extra privileges. तो उसको उन्होंने स्क्रैप किया और फिर क्लॉज 6 के तहत आप असम के Assamese जो कम्युनिटी है या फिर 1951 वाले जो कि कैटेगरीज वहाँ पे बताए गए, उन कम्युनिटी को अगर आप कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस देते हैं, और प्रिविलेजेस भी कि आप देख सकते हैं कि जो प्रपोजल्स है वो बहुत ही मतलब हर कोई मतलब इसको अपोज करेगा, क्योंकि बहुत ही मतलब अगर आप सोच सकते हैं कि 80 to 100% रिजर्वेशन वहाँ पे हो तो कौन मतलब ये मतलब एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर लेजिस्लेटिव जो अपर हाउस की बातें किया गया वो भी हो या फिर लैंड ट्रांसफर की बातें भी हो. तो आगे ये देखना है कि गवर्नमेंट इसे मतलब कैसे सुलझा सकती है या फिर उसका इस बिल का, इस रिपोर्ट का या फिर क्लॉज 6 का क्या भविष्य होने वाला है, ये भी देखना बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग होगा. और ये बिल्कुल अनसर्टेन है कि क्या होगा क्या नहीं होगा. तो इसी के साथ हम अपने इस टॉपिक को यहाँ पे मतलब खत्म कर रहे हैं, क्लॉज 6 and its related issues. I hope that you all have got the basic understanding of the things, and we have tried to provide you the most authentic data, and the data very special and very necessary to be known. So with this I conclude here. And once again, I request all of you to subscribe to our channel and share with your friends and family. So God bless you all.